सो स्टूडेंट्स, आज फिर हम क्लास शुरू करते हैं. इट्स अ थर्ड क्लास ऑफ योर व्हाट डू यू कॉल इट मनी एंड बैंकिंग GE 33 पेपर. The students are still joining the class. So what we have done in the last class was something like we have learned something like credit creation we are supposed to do today. Hello, process of credit creation. So we'll proceed with the process of credit creation, and as I said earlier, everyone who has joined the class, he is supposed to mark his attendance in the chat box with his name and college roll number. All right, and that doesn't mean that you are supposed to leave the class as you have marked your attendance. Okay, you are supposed to be present in the class constantly, and you are supposed to listen what I have been delivered by me. And if you have any queries and questions, you may ask in between, but uh, after whatever I want to say, उसके बाद ही आप जो कुछ मुझे बताना है मैं उसको बता दूं, उसके बाद ही आप उसमें ज्वाइन करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन पूछेंगे. बीच में इंटरप्ट करने से क्या होगा कि जो रिदम है क्लास की वो टूट जाती है. तो आई थिंक let's start with the process of credit creation. That is what we are supposed to do today. So yes, well, you might have studied this topic during your macroeconomics when we have done, I think, and probably I've sent a video lecture for that also when we have done the macroeconomics in the last semester. All right, so today we'll proceed further. तो आज हम एक नए सिरे से इसको समझेंगे. अब देखो, जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, that can be performed in two ways. There are two ways of creating uh, in regard to the process of credit creation, or you can say the deposit creation. You can say it like that also. The process of credit creation, or you can say deposit creation, sometimes also known as what do you call it, the money creation. Why money creation? As you all are aware that money supply equals C plus D, currency plus deposits. If deposits are increasing either through credit creation or deposit creation, obviously the money supply will go high, isn't it? कि अगर मान लीजिए डिपॉजिट क्रिएशन बढ़ता है by whatever means, by adopting whatever method, if D in the economy is rising, that means the money supply is also rising. So hence, either there is a change in C means the currency deposits, currency with the public, whereas D means demand deposits with banks. Demand deposits with banks. So, well, through credit creation process or deposit creation process, the bank used to make change in the deposits, or you can say side by side the loans are being created. You'll come to know sooner when we see how it actually works, how actually it is being done by the bank. Okay, so in this regard now, let's let's proceed in this regard further. What you want to know is that this entire process, this entire process of credit creation can be seen in two ways. Two ways are in the single bank economy. In the single bank economy case, when there is only one bank in the entire economy, and in the multiple bank economy, when there are multiple banks in the economic system. All right, so अब ऐसा क्यों लिया गया इसमें, that we are supposed to understand. You see,
single bank economy is just for the sake of simplification. Single bank economy is just for the sake of simplification. Please hold on. Well, single bank economy is just for the sake of simplification. कि भाई हम पहले सिंगल बैंक इकोनॉमी में कंसेप्ट को समझेंगे कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, जस्ट किस लिए, ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें. क्योंकि शुरू में ही अगर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें मैकेनिक्स उसका समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. उसका मैकेनिक्स समझने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए क्या है, हम सिंगल बैंक इकोनॉमी के केस में लेकर चलेंगे. पहले हम सिंगल बैंक इकोनॉमी को देखेंगे ताकि हम उसका मैकेनिक्स समझ आए, और सेम वही मैकेनिक्स फिर हम देखेंगे इन केस ऑफ मल्टीपल बैंक इकोनॉमी, कि मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में किस तरह से वो फंक्शन या किस तरह से वो प्रोसेस ऑपरेट होता है. So without delaying to anything else, let me start with the single bank economy and make few assumptions in that regard. So we are proceeding with the credit creation. Credit creation in case of single bank economy. In case of single bank economy. So let's make few assumptions for this. The assumption number one is there is only one bank in the economy. There is only one bank in the economy. That there is a single bank as we have assumed. So there is only one bank in the economy. Number two, all transactions are done through banking, through banks, you can say, through banks or banking system, you can say. Well, what does this mean? This means, just for the sake of simplification, what we have assumed is that that the people transact through a banking system. If they are supposed to make payment to anyone, they are supposed to paying through the banking system, either through the way of checks or some other means that has been provided by the bank. ठीक है, कि या तो चेक के थ्रू वो सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, या कोई और तरीका जो भी बैंक ने उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है कि उस तरह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं. तो पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रही हैं सभी ट्रांजेक्शन्स. एंड फर्दर the required reserve ratio is 10% of total deposits with the bank. Have we discussed anything about the required reserve ratio earlier? Please let me know. Hello? Have we discussed about this? हमने पहले डिस्कस किया इसके बारे में? नहीं किया? तो let me explain that thing to you. Well, see, अब इसके साथ साथ whatever we have written over here with these, along with these assumptions, we are supposed to understand one more thing. The first thing is, it is the prior obligation of a bank to comply to the claims made by the depositors whenever they asked to the bank. अब जो डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा जमा किया है, तो ये एक बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पैसे को जब कभी भी डिपॉजिटर्स
अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करना चाहते हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, चाहे वे ऑफ चेक है, चाहे वे ऑफ आजकल एटीएम कार्ड है और अदरवाइज कोई भी तरीका है, तो उन डिपॉजिटर्स को क्या करना होगा, तो बैंक को क्या करना होगा, उन डिपॉजिटर्स को वो पैसा देना पड़ेगा। ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन होता है, बैंक का ऑब्लिगेशन होता है, बैंक्स ऑब्लिगेशन है टू मीट द, और यू कैन से टू ऑनर द claims made by customers, or you can say clients. Sometimes clients word is also being used for the same. well, कि जितना भी वो क्लेम करेंगे, जितना भी से मतलब है जो भी उनके अकाउंट में है उसके अकॉर्डिंगली जो वो क्लेम करेंगे, तो उन्हें कस्टमर के उन क्लेम्स को मीट करना है, ये उनका ऑब्लिगेशन है, ये जिम्मेदारी है बैंक की। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो लोगों का बैंक में से ट्रस्ट चला जाएगा, और लोगों का बैंक से ट्रस्ट चला जाएगा यानी कि उनका कॉन्फिडेंस बैंक में नहीं रहेगा, तो वो अपना सारा पैसा विड्रॉ करेंगे बैंक से, और सारा पैसा विड्रॉ करेंगे तो देयर वुड बी अ सिचुएशन दैट द बैंक में कोलैप्स, कि बैंक कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन को हम बोलेंगे बैंक पैनिक। अगर वो ये फेल कर जाता है अपने इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, देन देयर वुड बी अ बैंक पैनिक। बैंक पैनिक का मतलब है कि सब लोग अपने पैसा बैंक में चले गए निकलवाने के लिए कि भाई हमें तो वापस दो, तुम तो हमें पता चला है यहाँ से लोगों को मिल नहीं रहा है, तो जल्द से जल्द अपना पैसा निकलवाने की डिमांड करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, उसके लिए धरने प्रदर्शन करेंगे, जो भी कुछ है, तो वो बैंक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, बैंक अपने रिजर्व्स मेंटेन करता है, रिजर्व्स मेंटेन करता है। बैंक क्या करता है, रिजर्व्स मेंटेन करता है अपने पास। क्यों रिजर्व क्यों मेंटेन करता है? बिकॉज थ्रू इट्स एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर, द बैंक नोज कि हाउ मच ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट्स आर विड्रॉन डेली, कि डेली बेसिस पर उसके टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट हिस्सा जो है बैंक में से विड्रॉ हो रहा है। तो बैंक को ये मालूम होता है कि देयर आर डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स, डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स आर देयर, डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स है, डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स हैं, और जो डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड डिपॉजिटर्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोग तो विड्रॉ करते हैं, सम विड्रॉज एंड सम डिपॉजिट्स। कुछ लोग तो विड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, पैसा, और कुछ लोग डिपॉजिट करेंगे। तो आप देखे होगे, आपने अगर कभी देखा होगा, इफ यू हैव विजिटेड द बैंक्स, कि वहाँ लाइन लगी होती है कैश काउंटर पे, कुछ जमा करने वालों की होती है, कुछ एक लाइन होती है विड्रॉ करने वालों की, यस और नो, ठीक है। तो लोग विड्रॉ भी करेंगे और लोग डिपॉजिट भी करेंगे, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, समटाइम्स ऐसा होगा विड्रॉ थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए हो, डिपॉजिट कम हुए हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिपॉजिट ज़्यादा हो गए हो, विड्रॉ कम हुए हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर रहे हो। तो इन तीनों में किसी भी सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन हो, तो अगर बैंक ने अपने पास रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं, अगर बैंक ने अपने पास अगर रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं, देन द बैंक विल बी एबल टू मीट इट्स क्लेम्स, यस और नो, क्लेम्स ऑफ द कस्टमर। बैंक विल बी एबल टू ऑनर द क्लेम्स ऑफ द कस्टमर, कि अपने कस्टमर के क्लेम्स को बैंक क्या कर सकता है, ऑनर कर सकता है रिजर्व्स के थ्रू, यस और नो, यस और नो, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक को रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है, ये बेसिकली रियलिटी में सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, पर यहाँ हमने, क्योंकि हमने माना है कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो वो खुद ही डिसाइड करेगा, यस और नो। यहाँ हमने माना है इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो वो खुद ही डिसाइड करेगा, इजंट इट। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए वैसे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है।
बट क्योंकि हमने माना है कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो इसलिए वो बैंक खुद ब खुद ही डिसाइड करेगा, कि रिजर्व रेशो क्या होती है। और ये हमने मान लिया कि वो रिजर्व रेशो उसने अपने एक्सपीरियंस से ये मानी है कि कितनी है, 10% है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके विद एवरीवन? किसी को कोई सवाल पूछना है इतना जो डिस्कशन किया इसके रिगार्ड में? Do you want to ask anything? If anybody wants to ask anything, he is free to ask. Please, if you have any question in regard to the discussion so far we have done, sorry, please do ask. Sorry. चलें आगे बढ़े. Please excuse me for a while. हेलो हेलो, हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से बैंक इस प्रोसेस को अंजाम देता है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है। लेट अस मेक a balance sheet, or you can say the T account of a bank. Balance sheet or a T account of a bank. Suppose there is only one bank, Bank X. Bank X is there. Now the Bank X balance sheet will look like this. Balance sheet will look like this. Well, on the one side we will write the assets of the bank, and here is the amount. On the other side we will write the liabilities and the amount. All right, so first we will understand the assets. Well, there are two types of assets. एसेट्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? क्या होते हैं एसेट्स? हेलो, कोई बता सकता है आप में से एसेट्स क्या होते हैं? हेलो, है? अच्छा, एसेट्स टोटल कैपिटल या लायबिलिटीज होती है। और कुछ बता सकते हो? और कोई जानता है? ये देखो, एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति, यानी कि जो पैसा हमें लेना है या जो हमारी चीज़ है, तो उसमें दो चीज़ें होते हैं। एक तो हम यहाँ लिखते हैं रिजर्व्स। अब रिजर्व्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटे। एक होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स, और एक होते हैं एक्सेस रिजर्व। एक होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एक होते हैं एक्सेस रिजर्व्स। एक तो ये एसेट है जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, ठीक है, बैंक का दूसरा एसेट होता है लोन्स, जो बैंक ने लैंड किया हुआ है पैसा।
क्योंकि जिनको लैंड किया है पैसा वो बैंक के डेटर्स हैं। तो जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो जानते हैं डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट्स हो गए, यानी कि अगर बैंक ने किसी XYZ इंडिविजुअल को लोन दिया है तो वो XYZ इंडिविजुअल बैंक को वापस लौटाएगा, इसलिए बैंक उसको अपना एक एसेट मान रहा है कि इतना पैसा अभी मेरे पास आना है जो कि मेरा खुद का है, उसने मुझे अभी लौटाना है। यस और नो? इसको इस तरह से लेकर चलिए जैसे आपने किसी को यार दोस्त को उधार पैसे दे रखे हैं, तो जब आप अपनी टोटलिंग करते हैं कि भाई मेरे पास आज कितने पैसे हैं, तो उस या कितने फंड्स टोटल हैं मेरे पास, तो आप क्या करते हैं, जो फंड्स आपके पास घर में रखा वो तो जोड़ते ही हैं, पर प्लस उसमें उस फंड्स को भी जोड़ते हैं जो आपने किसी XYZ से लेना है कि हाँ मैंने 1000 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये या 10,000 रुपये या लाख, जो भी कुछ आपने दिया हुआ है उतना पैसा मेरा वहाँ से भी आना है। तो इसी तरह से जो बैंक है, तो बैंक के लिए भी एसेट्स जो होता है वो लोन भी होता है और रिजर्व, दोनों बैंक के एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब बारी करते हैं बैंक की लाइबिलिटीज। अब बारी आती है बैंक की लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज है डिपॉजिट्स। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो हमारी देनदारियां हैं। डिपॉजिट्स यानी कि जो देनदारियां हैं। देनदारियां का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जो पैसा हमने किसी को देना है, हमारी जिम्मेदारी है किसी और को लौटाने की। तो जितने भी बैंक के क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है, तो वो सारी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि वो सब लोग जब चाहे तब अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं और बैंक को वो पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसलिए वो बैंक की क्या है? लाइबिलिटीज कहलाती है। इज दैट ओके विद एवरीवन? हेलो, इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है, तो बैंक के रिजर्व्स हमने देखे, बैंक के डिपॉजिट्स क्या है, अब हमें पता चल गया लायबिलिटीज़ क्या है और एसेट्स क्या है बैंक के, और लायबिलिटीज़ और एसेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं। सपोज करते हैं कोई एक इंडिविजुअल है, ए का अकाउंट है बैंक में, और उसके अकाउंट में जो अमाउंट रखा है वो 100 रुपये डिपॉजिट है, 100 रुपीज़। ये अमाउंट इन रुपीज़ ले लीजिए, यहाँ पर दोनों जगह पर अमाउंट रुपीज़ में है। ये करोड्स भी मान लो, चाहे रुपीज़ इन करोड्स हैं, चाहे सिर्फ 100 रुपीज़ है, चाहे 1000 है, वो आपकी मर्जी है कौन सी यूनिट आपने लगानी है। पर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 100 रुपीज़ मानकर चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहे। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है वो है 10%। तो इसका मतलब हो गया कि जो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? डिपॉजिट 100 रुपये के हैं, एक ही अकाउंट है और 100 रुपये डिपॉजिट है। तो बैंक में क्या होगा? 10 रुपये बैंक में एज अ डिपॉजिट रखेगा, यानी कि बैंक अपने पास एसेट की फॉर्म में तो एंट्री करेगा, ये एसेट की फॉर्म में तो एंट्री ये करे, लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में तो एंट्री ये करेगा कि भाई 100 रुपये मेरे XYZ के अकाउंट में डिपॉजिट है, जो उसे कभी भी वापस लौटाने पड़ सकते हैं जब कभी भी ए डिमांड करेगा। और जो बैंक अपने एसेट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग करेगा तो बैंक लिखेगा कि 10 रुपये रिजर्व की फॉर्म में रखे हुए हैं। तो एक्सेस रिजर्व कितने हो गए बैंक के पास? 90 रुपीज़। तो अगर टोटल दोनों तरफ का देखोगे तो 100 टोटल आ रहा है। इज दैट ओके विद एवरीवन? हेलो, इज दैट ओके विद एवरीवन? अब क्या है, सपोज करो अब बैंक के पास 90 रुपीज़ एक्सेस रिजर्व है। अब बैंक के ऊपर ये एक तरीके की बैंक के ऊपर ये छूट है, या कह लीजिए उसको ये सहूलियत है, या उसके पास ये राइट है कि वो 90 रुपीज़ तक के अमाउंट को लैंड कर सकता है। क्योंकि जो 10 रुपीज़ का अमाउंट है, ये अमाउंट तो उसकी जो क्लेम्स होंगे, डेली क्लेम्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये सफिशेंट है। पर जो बाकी का 90 रुपीज़ है ये बैंक लैंड कर सकता है। अब ये बैंक लैंड कैसे करेगा? बैंक कैसे लैंड करेगा भैया? लैंड करने के बैंक के पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके। क्या हैं कि बैंक क्या कर सकता है, 9 रुपये का लोन 10 जनों को दे सकता है, 10 रुपये का लोन 9 जनों को दे सकता है, भाई 9 पर्सन्स को दे देगा 10 रुपीज़। ऐसा भी कर सकता है 40 का लोन किसी एक्स को दे दे और 50 का लोन किसी वाई को दे दे, या 30 या 60 कर दे। वो इसके किस फ्रैक्शन का लोन, कितना अमाउंट किसको देगा, वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होता है। इज दैट ओके? बट इन टोटलिटी जो बैंक होगा, इन टोटलिटी जो बैंक है वो 90 रुपीज़ तक के लोन दे सकता है एट प्रेजेंट। इज दैट ओके?
बैंक क्या कर सकता है, 90 रुपीज तक के लोन दे सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके। अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है बी, उसको लोन चाहिए 90 रुपए का। बी को रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्स लोन ऑफ ₹90, 90 रुपए का लोन चाहिए बी को। अब हमने ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिया ताकि हमारी ट्रांजैक्शन क्लीन रहे, एक ट्रांजैक्शन हमारी क्लीन रहे और हम उसे मैकेनिक्स को आसानी से समझ सके। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बी को लोन जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और बैंक क्या करेगा, बी का अकाउंट खोल देगा। 2 अकाउंट खोलेगा बी के। एक अकाउंट में तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा डिपॉजिट्स जो कि ₹90 नजर आएंगे। अब ये 90 रुपीज़ यहाँ डिपॉजिट्स नज़र आए हैं, तो इस 90 रुपीज़ के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट वो यहाँ पर रिज़र्व क्रिएट करेगा जो कि हैं 9 रुपीज़ के बराबर। यहाँ पर रिज़र्व क्रिएट करेगा जो कि है ₹9 के बराबर, ठीक है। अब बैंक के पास और यहाँ पर एक्सेस रिज़र्व 90 नहीं रहे हैं। अब दूसरी ट्रांजैक्शन बैंक क्या करेगा, बैंक बीज अकाउंट खोल लिखेगा यहाँ पर जो कि लोन के अंदर होगी एंट्री, और 90 रुपीज़ एज अ लोन यहाँ रिप्रेजेंट कर देगा। तो अब अगर यहाँ देखें तो अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व 90 रुपीज़ नहीं है, अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व 81 रुपीज़ है। बैंक के पास एक्सेस रिजर्व 90 रुपीज़ नहीं है, बैंक के पास एक्सेस रिजर्व अब 81 रुपीज़ है। अब ऐसा क्यों है भाई, उसके पास एक्सेस रिजर्व कैसे हो गए, उसने तो बी को दे दिया लोन। उसका रीज़न ये है कि जैसा हमने ऊपर एज्यूम किया है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। अगर बी भी किसी को पेमेंट करता है तो वो पेमेंट बैंक के थ्रू ही करेगा और जो भी XYZ होगा वो उस पेमेंट को बैंक में ही जमा कराएगा। तो अल्टीमेटली जो पैसे हैं वो बैंक के पास ही मेंटेन्ड है, बैंक से बाहर तो जा नहीं रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कुछ इस तरह से ले लीजिए, आपने मेरे से पैसे लेने हैं 100 रुपये और किसी दूसरे पर्सन ने मेरे को देने हैं 100 रुपये, तो आप मेरे से 100 रुपये ले गए, वो दूसरा पर्सन वो 100 रुपये मेरे पास वापस लौटा गया, तो मेरे पास तो अल्टीमेटली 100 रुपीज़ ही मेंटेन रहे ना। हेलो हेलो बेटे, समझ में आ रहा है सभी को? अरे भाई एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है, बाकी सब भी हैं प्रेजेंट या गायब हो गए? हेलो, अरे भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक ऐसा करेगा, अब 81 है तो अब बैंक क्या करेगा, 81 के लोन दे सकता है। तो ऐसे ही सपोज करो 81 के लोन भी वो अलग अलग तरह से दे सकता है। ऐसा कर सकता है कि भाई 81 रुपीज़ एक ही को लैंड कर दे, ऐसा कर सकता है 1 रुपया लोन किसी को दे दे, 80 रुपये किसी को दे दे लोन। ऐसा भी कर सकता है कि 8 रुपये 10 लोगों, 8 रुपये तो 10 लोगों को दे दे और 1 रुपया 11वें आदमी को दे दे लोन। मतलब वो इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस या पोर्शन में वो लोन डिसबर्स कर सकता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट द बैंक will lend to one individual and that individual requires the loan of 81 rupees. Let the C requires loan amount of rupees 81. Now in this case also the bank will proceed the same way, in the same way. So what the bank will do, bank will open an account and the balance of 81 rupees will be reflected as a deposits in his account, in C's account. On the other side bank is supposed to reserve 10% of whatever deposits have been increased, और जो टोटल डिपॉजिट है इसका टोटल करोगे उसका 10% निकालोगे तो इन तीनों के टोटल के बराबर आएगा। ठीक है। नाउ C's account would be here loan account which reflects 81 rupees as a loan that a C is supposed to pay to the bank, you know, C वो पे करना शुरू करेगा बैंक को आगे फ्यूचर में। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेस रिजर्व रहे वो 81 के नहीं रहे। अब इसमें से माइनस करो जरा 81 में से 8.10 को, लेट मी नो द आंसर प्लीज, हरी अप फास्ट। 72.9 वुड बी द एक्सेस रिजर्व नाउ। ठीक है। नाउ अगेन द सेम वे, इफ द डी वांट्स टू सपोज बैंक में लैंड द सेम अमाउंट
and he, suppose there is an individual D that requires a loan of rupees 72.9, of rupees 72.9, then in the same way bank will proceed. On the one side, his deposits, his account reflects the deposits of rupees 72.9 which he can make use of, and similarly the bank will keep the 7.29 as the reserves for this, and bank will again open the D's account, and the loan, as a loan, the bank's account reflects that 72.9 rupees are supposed to be paid by the individual D. And here again, if we subtract 7.29 from 72.9, what would be the answer? Please let me know. Hurry up. Yes. Yes, students. Please tell me what would be the answer. If you subtract 7.29 rupees from 72.90, what would be the remaining balance? Hello? Am I audible to everyone? Hello? Students? हेलो? कितना अमाउंट बचता है? ठीक है, बताइए फटाफट कितना अमाउंट रिमेनिंग रहता है इफ वी सब्ट्रैक्ट 7, क्या है 65.61। ठीक है, अब देखो जब तक ये एक्सेस रिजर्व रहेंगे, यानी कि इस तरह से एक्सेस रिजर्व बनते रहेंगे और आधे फर्दर प्रोसीड होता रहेगा ये। पर आप ये देखना, जब तक ये प्रोसीड होगा तब तक के ट्रांजैक्शंस में एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम आएगा। आप टोटल करके भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ये तो ठीक है भाई, इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो कितने क्रिएट होंगे? तो टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है। टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू होगा इनिशियल डिपॉजिट इन मल्टीप्लिकेशन विद 1/r रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। तो अगर आप इनिशियल डिपॉजिट देखें तो हमारे कितने थे 100, इनटू में ये कितना है 10%, तो 0.10 हो गया, 0.10 हो गया, 00 यहाँ आगे 0 से 0 कैंसिल, तो ₹1000 के हम टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट करते जाएंगे। अगर हम ऐसे ही ये फर्दर करते जाएं, डी की जगह फिर ई लिखें या ऐसे ही, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे, हम इसको ऐसे ही प्रोसीड करते रहें, तो एट द एंड जो टोटलिंग आएगी दोनों तरफ की जो टोटलिंग आएगी वो 1000 और 1000 बनेगी। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि दोनों तरफ का जो टोटल होगा वो 1000 और 1000 आएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो 1000 और 1000 आएगा। तो दिस इज हाउ द क्रेडिट इज बीइंग क्रिएटेड बाय अ बैंक। This is the basic mechanics in which we have seen if there is only one bank in the economy, how does the transaction takes place. Now the question remains, if there are multiple banks in the economy, then what would be the scenario and how the transaction will take place. कि अगर multiple banks होंगे तो उसमें फिर transaction किस तरह से होगी। Is that okay? इसमें जितना ये प्रोसेस मैंने समझाया है, आप लोगों को बताया, इसमें इस प्रोसेस से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आप में से? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसी ने कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है? ये 34 इंडिविजुअल्स मुझे दिखा रहा है, अभी तक 30 ने शायद अपनी अटेंडेंस मार्क की है। 2 और 3 स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर who are supposed to mark their attendance. Please do mark your attendance. All right. किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? नहीं पूछना? हेलो? Okay then. Now we'll proceed with the multiple bank economy.
what happens in case of multiple bank economy. So we are discussing the process of credit creation, process of credit creation in multiple बैंक इकोनॉमी, कि मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो होगा वो कैसे चलेगा। ठीक है, मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी नाउ। तो इसके लिए पहले मैं कुछ फॉर्मेट्स बना लेता हूँ डिफरेंट बैंक्स के। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 बैंक हैं इकोनॉमी में। ठीक है, मैं इसकी पहले कुछ एजम्पशंस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई शक व शुबा ना रहे कि भाई ये किस तरह से ऐसे हुआ। एजम्पशन लिख लेता हूँ कि देयर आर 3 बैंक्स इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रल बैंक को छोड़कर कमर्शियल बैंक 3 हैं। 3 बैंक्स इन द इकोनॉमी। बैंक्स के नाम लिख दें क्या? बैंक हो गया X, बैंक Y and bank Z. Is that okay? Let us assume further, for the sake of simplification, all transactions are done through banking system, the same as we have discussed earlier, कि all the transactions are done through the banking system. The next one is the required reserve ratio is 10% of total deposits, कि whatever the total deposits are with the bank, that's 10% a bank is supposed to keep with itself as a reserves. So these are the broad assumptions on which we will proceed. अब इसमें मैं 3 बैंक के 3 बैलेंस शीट बनाऊंगा, हर बैंक की 3 बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं। उसका रीज़न ये है, एक तो हम दिखाएंगे इनिशियल सिचुएशन कि जिस टाइम पे कोई क्रेडिट क्रिएट नहीं किया गया और शुरू में ही जो सिचुएशन होगी बैंकों में वो उनकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। तो हमने बैंक XYZ माने हैं, तो मैं एक तरीके से मैं 3 बैलेंस शीट अभी आप लोगों के सामने बनाऊंगा to represent the 3 different banks here. And we will see how the process of credit creation will be performed in the case of multiple bank economy. In the case of multiple bank economy. In the case of multiple bank economy. Well, more or less the process and mechanism will be the same, only the outlook will be different, you know. आउटलुक डिफरेंट हो जाएगा और थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन से हम देखेंगे, थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगेगा ये इस तरह का कि हाँ भाई सचमुच ऐसे होता है, क्योंकि ये मल्टीपल बैंक्स की बात है। तो सपोज करते हैं दिस इज़ बैंक X, दिस इज़ बैंक Y एंड दिस इज़ बैंक Z. Bank X, Y and Z. On this side I'll write the assets and then the amount, then the same way liabilities is then amount, same goes here, assets
then the amount, again the liabilities, then the amount, then again the assets, then the amount, then again liabilities, then the amount. All right, so let us assume I'll write in short, if I'm writing R, capital R, so let me write it over here. I'll use some abbreviations to optimize the space utilization. All right, so I'll use a few of the, what do you call it, abbreviations. Let us assume the reserves are will be written as R, the required reserves will be represented as RR, and the excess reserves I'm gonna write as ER. Same goes for the loans. For the loans I'm supposed to write L, and for the deposits I'm gonna write D, just to optimize the utilization of space. So bank has the R, and there are two types of reserves. Required reserves and excess reserves the bank is supposed to use, and the bank has the loan account. All right, so L stands for the loan. Same goes here. The deposits, D I'm writing for deposits, and whatever the deposits are, they will be reflected in this amount, here with the name of the individual holder. Same goes here, R, then RR, then ER, then this is L. L goes for the loan account, and D is for the deposits account, and D represents the deposits as elaborated earlier. So this is the RR, then again ER, this is L, this is the loan account, then again this is D, this is the, what do you call it, deposit account, or you can say the deposits. Suppose in bank X, there is individual A's account, and his account holds rupees 100. Let us assume for simplification. So his required reserves are 10 and his excess reserves are 90, as he has not lent anything to anyone. So his balance sheet would be something like this. 100 and again 100. All right, please hold on for. तो चलिए शुरू करते हैं फिर. सपोज ए का अकाउंट है, जो बैंक व्हाट डू यू कॉल इट, जो बैंक एक्स है उसमें ए का अकाउंट है, उसके 100 रुपीज़ है, तो उसकी बैलेंस शीट ऐसे है. बैंक वाई है, तो बैंक वाई में सपोज करते हैं कि देयर इज इंडिविजुअल बी, एंड बीज अकाउंट रिफ्लेक्ट्स deposits of, let us assume 200 rupees. Then in that case the Y bank will hold let us assume rupees 20 as a reserves and rupees 180 as excess reserve, as it has not lent to anyone. So his balance sheet too represents the 200 deposits, on both sides the balance will be 200. Same goes here. There is individual C, and C's account is in bank Z, and which has a total deposits of 400 rupees, let us assume. So there will be required reserves would be of 40, then the remaining excess reserve will be of 360, as we are assuming that none of the bank has lent to anyone, so the total deposits remains as it is. The total deposits remains as it is. Somebody has joined the class this time. Hello, Shreya Gupta. Hello, Shreya Gupta, are you listening? Hello, Shreya Gupta, are you listening? Please do try to join the class in the morning, in time. That too, you are 1 hour late, so from the next time onwards you are supposed to be in time. Okay, Shreya Gupta, if you are listening, you have joined the class at 12:15, around 12:15, so you are supposed to join it at 11, because your class starts at 11. All right,
Next time I will not allow you to be in the class if you are late. So let's proceed. So this is the initial situation when none of the bank has lent to anyone, and these are the balance sheet. These are the kind of balances that are being reflected by the by these balance sheets of respective banks, bank X, bank Y sorry, and bank Z. सॉरी, बैंक एक्स वाई एंड जेड. प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ वाइल यार, मेरे साथ तो कुछ प्रॉब्लम है ही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्दर. कि अब हम देख रहे हैं कि भाई ये इनिशियल सिचुएशन है. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं बैंक एक्स ने लैंड किया है, ठीक है, और सिर्फ बैंक एक्स ने लैंड किया है, किसी और बैंक ने लैंड नहीं किया है. तो जब बैंक एक्स लैंड कर देगा तो सब बैंकों की और इस बैंक की बैलेंस शीट क्या दिखाएगी. पर उससे पहले हम एक एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एज्यूम करते लेते हैं दैट देयर इज इंडिविजुअल, लेट अस अज्यूम, व्हाट डू यू कॉल इट, individual J who is supposed to pay individual C an amount of ₹90. अब देखो, कोई भी इंडिविजुअल, मुझे एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है ये, कोई भी इंडिविजुअल लोन किस लिए लेता है भाई, बता सकते हो आप? अरे भाई कोई बता सकते? हाँ, मतलब रिक्वायरमेंट पूरा करने का मतलब क्या है कि वो रिक्वायरमेंट पूरा करेगा तो उसे किसी ना किसी को पेमेंट करनी है. मान लो मैंने हाउसिंग लोन लिया तो जिससे मकान खरीदा उसे पेमेंट करनी है. मैंने कार लोन लिया तो जिससे कार खरीदी उसको पेमेंट करनी है. मैंने टीवी खरीदा है लोन पे तो जिससे टीवी खरीदा उसको पेमेंट करनी है. किसी ना किसी को पेमेंट करनी है, इसीलिए हम बोरो कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं तो बोरो करने का कोई और मतलब नहीं है. तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो जे है, जे ने बोरो किया है, जे को पेमेंट करनी है किसको? सी को, ठीक है, और जे का अकाउंट है बैंक एक्स में, हम ये मान लेते हैं. अब जे का अकाउंट तो है पर अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, तो जे का अकाउंट है पर अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, ये हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं, ठीक है. तो टोटल डिपॉजिट अभी भी 100 है और इसी तरह से. अब जे को लोन लेना है एक्स बैंक से, तो जे एक्स बैंक से 90 रुपए का लोन लेगा और वो सी को पे करेगा, यस और नो, क्योंकि उसने सी को पे करना. अब सी का अकाउंट है बैंक जेड में. सी का अकाउंट कहां पर है? ये देखो, बैंक जेड में है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो. तो इस ट्रांजैक्शन को हम दो तरह से देखेंगे. एक तो हम देखेंगे जब जे ने बैंक में लोन अप्लाई किया, बैंक ने जे का लोन अप्रूव किया, तो वो बैलेंस शीट कैसी है. यानी कि बैंक जे को लोन मिल तो गया है पर जे ने अभी बैंक में से पैसे निकाले नहीं हैं सी को पे करने के लिए. इज दैट ओके? सी को पेमेंट नहीं किया है. एक तो वो सिचुएशन. फिर उसके बाद देखेंगे जब सी को पेमेंट कर देगा तो क्या सिचुएशन होगी. इज दैट ओके? हेलो. तो मैं अब यहां पर सिचुएशन लिख रहा हूं, व्हेन लोन ऑफ जे इज बीइंग सैंक्शनड, but payment to C has not been made. But payment to C has not been made. कि जे ने क्या किया है, जे का लोन तो सैंक्शन हो गया है बट उसने अभी सी को पेमेंट नहीं किया है. तो जब ये होगा तो बैंकों की बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी, दैट वी आर सपोज टू सी. तो मैं यही बना देता हूं बैलेंस शीट 3. बैंक एक्स, यहां पर मैं लिखता हूं बैंक वाई, बैंक एक्स, बैंक वाई, और
यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैंक जेड। सेम वही एब्रीविएशंस में यूज़ करूँगा, यहाँ पर भी सेम एब्रीविएशंस हम यूज़ करेंगे। सेम एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे हम जो हमने पहले की थी। दिस इज बैंक जेड, आर, आर आर, ई आर, and that is L account. This is D. Sorry, here are the assets. This is amount. Again liabilities. This is amount. Again assets. This is amount. Here liabilities. This is amount. Here again assets, again the amount. Now let's make let's make the balance sheet of Z. Here is the liabilities and the amount at 2 in rupees. So again R, RR, ER, this is L account. Right, here the D, deposit accounts, again R, RR, then ER, then again D, and this is the loan account, L account, loan account. All right, so let us see what happens in the balance sheet of bank X. J ने अप्लाई किया तो A का अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, A के अकाउंट में 100 रुपये दिखाएगा, तो 10 रुपये उसके रिजर्व प्लस 90 रुपीज़ यहाँ दिखाएगा। अब जब J ने लोन अप्लाई किया और इसका लोन सैंक्शन हो गया, तो लोन सैंक्शन होने के बाद क्या होगा, लोन सैंक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ J के अकाउंट में दिखाएगा, J's अकाउंट कितना दिखाएगा, 90। ठीक है, यहाँ 9 रुपीज़ रखेंगे और ये जो एक्सेस रिजर्व है ये 90 रुपीज़ यहाँ से ख़त्म होंगे और यहाँ दिखाएगा लोन, सॉरी यहाँ एक्सेस रुपीज़ एक तरीके के दिखाएगा 81 रुपीज़, यहाँ एक्सेस रिजर्व होंगे 81 रुपीज़ के, 81 रुपीज़ के, और यहाँ लोन जो होगा जेज अकाउंट में दिखाएगा एक तरीके से 90, जो जे का अकाउंट है उसमें वो दिखा देगा 90 रुपीज़। जे के अकाउंट में वो दिखा देगा 90 रुपीज़, जेज अकाउंट 90 रुपीज़। तो दोनों तरफ का टोटल अगर आप करोगे, आप दोनों तरफ का टोटल कीजिए, यहाँ 190 आ रहा है, इधर का टोटल करोगे इन सबको मिलाकर तो भी 190 आएगा। अब क्योंकि वाई बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना तो किसी ने डिपॉजिट किया, ना किसी ने विड्रॉ किया, ना किसी ने लोन लिया, तो हम ये मानकर चल रहे हैं वाई की बैलेंस शीट एज इट इज़ दिखेगी। यहाँ बीज अकाउंट होगा 200 और लोन अकाउंट कुछ है नहीं, तो इसका भी टोटल 200 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये 200 यहाँ आ गया, ये 200 यहाँ आ गया। अब क्योंकि जे का लोन तो सैंक्शन हो गया है, पर जे ने अभी ये पेमेंट नहीं की है, किसको, सी को, क्योंकि जे ने सी को पेमेंट करनी थी, ये हमने एज्यूम किया है ऊपर, ये देखो जे ने सी को पेमेंट करनी थी, पर जे ने अभी सी को पेमेंट की नहीं है, तो पेमेंट नहीं की है तो एक तरीके से जो जेड बैंक है उसमें अभी भी ऐसी सेम अमाउंट दिखेगा, सीज अकाउंट 400 रुपये,
और इसका भी टोटल ऐसे ही है। तो यानी कि जब तक लोन सैंक्शन होगा और वो लोन सैंक्शन होके जे जब तक सचमुच इस बैंक से पैसा निकालकर सी को नहीं दे देता है, तब तक ये बैलेंस शीट इस तरह की दिखेगी। क्या इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई डाउट है किसी को इतनी बात में? हेलो, जितना हमने ये किया इसमें इतना किसी ने कोई सवाल पूछना है क्या? ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। एक्सेस रिजर्व बड़ा कहाँ है? एक्सेस रिजर्व तो घटा है, ये 81 रुपीज रह गया ना अब 90 रुपीज। हाँ बोलो, कहाँ बढ़ गया ये? तो रिक्वायर्ड रिजर्व तो टोटल डिपॉजिट का 10% लेना है ना। अब अगर जे के अकाउंट में देखोगे तो 90 रुपये दिखाएगा जो कि वो विड्रॉ कर सकता है, और ये 90 रुपये उसके लोन अकाउंट में दिखा रहा है जो उसे पे करने हैं बैंक को, है ना। यानी कि आप जब किसी को, मान लो मैं आपके पास उधार लेने आया पैसे, क्या नाम है बेटे आपका? सौरभ। सौरभ पूरा नाम क्या है? सौरभ औटित। तो सौरभ ये सुनो मेरी बात, कि सपोज करो मैं आपके पास उधार लेने आया, मैंने कहा यार सौरभ ऐसा है, मेरे को थोड़े 1001 रुपये दे दो उधार, मेरी हालत थोड़ी खस्ता चल रही है। तो आपने कहा ठीक है सर मैं दे दूंगा, शाम को ले लेना। तो जो आपके पास 1000 रुपये आपके पास रखे हैं, तो वो 1000 रुपये आपने अपने पास एक तरीके से दो तरह से अपने माइंड में ट्रांजेक्शन कर ली। कैसे? एक तो आपने रख ली कि मुझे अब 1000 रुपये सर को देने हैं, या सुनो, और एक ट्रांजैक्शन वही माइंड में आपने लिख ली अपने कि मुझे 1000 रुपये सर से लेने हैं। तो वही ट्रांजैक्शन जो हम दिमाग में लिख रहे हैं, वही ट्रांजैक्शन बैंक बैंक एक तरीके से फिजिकली अपनी बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो तरीका है। यानी कि बैंक ने ये लिख लिया कि जे को मुझे 90 रुपये देने हैं जो कि वो विड्रॉ कर सकता है, और जे से मुझे 90 रुपये लेने भी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तरफ का टोटल सेम है, इसलिए ये यहां पर अभी आपको एक्सेस रिजर्व दिख रहे हैं। और क्योंकि ये 90 रुपये या डिपॉजिट बढ़ाया बैंक ने, डिपॉजिट्स बढ़ाए है ना लाइबिलिटीज साइड में, क्योंकि ये 90 रुपये अभी बैंक को जे को देने हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके नाम का भी उसने उसके एवज में भी जो बैंक है उसने क्या किया, एक तरीके से अपने रिजर्व मेंटेन कर दिए जब तक ये डिपॉजिट है। जब ये डिपॉजिट यहां से निकलेगा तो रिजर्व फिर से वैसे आ जाएंगे, वो अभी हम देखने वाले हैं। इज दैट ओके? कोई और सवाल है? किसी ने कुछ और पूछना है? शैल वी प्रोसीड? अरे भाई यस नो कुछ तो बोल दिया करो। शैल वी प्रोसीड? तो अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं व्हेन जे हैज मेड द पेमेंट टू सी, कि बैलेंस शीट व्हेन जे हैज मेड द पेमेंट टू सी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक तरीके से इस तरह से मैं स्पेस को यूज कर लेता हूं ताकि व्हेन जे हैज मेड पेमेंट टू सी, जब जे ने सी को पेमेंट कर दी, जिस टाइम जे ने सी को पेमेंट कर दी उस टाइम किस तरह का क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट दिखेंगी, किस बैंक की बैलेंस शीट कैसी होगी, दैट वी आर सपोज टू सी नाउ। तो सेम मैं उसी तरीके से बना लेता हूँ तीनों बैंक की बैलेंस शीट, और देखते हैं कौन सी एंट्री किस तरह से। Well, this is bank X, this is for bank Y, this is for bank Z. So we
we'll use the same abbreviations as we have used earlier. We will use the same abbreviations. This is assets and this is the amount. Again, here are the liabilities. Here are the amount. Again, assets. Here are the amount. Here liabilities. Here are the amount. Here are the assets. This is the amount. Then liabilities. This is the amount. Okay. Let's start with bank X. What would happen to bank X? Got it? Let's start with bank X. Well, let us see what happens on the deposit side. डिपॉजिट साइड क्या होगा, एज अकाउंट है, उसमें तो 100 रुपये एज इट इज नजर आएंगे. अब क्योंकि जे ने सी को पेमेंट कर दी है, क्योंकि जे ने क्या कर दिया है, सी को पेमेंट कर दिया है, तो जे के अकाउंट से पैसा निकल के चला गया, तो जे के अकाउंट बैलेंस में 0 बैलेंस शो करेगा. प्लीज पार्टिसिपेट. यस और नो? ठीक है. लेट अस सी हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू अफेक्ट द रिजर्व्स. अब जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका 10% रिजर्व्स रखने हैं, तो उसका 10% रिजर्व रखेंगे तो ये 10 रुपये आ जाएगा यहाँ पर. यस और नो? है कि नहीं? क्योंकि अब टोटल डिपॉजिट इस तरफ का देखें तो 100 है और उसका 10% हो गया 10, यहाँ पर रख दिया हमने. अब देखते हैं लोन अकाउंट में क्या है. लोन अकाउंट क्योंकि जे ने अभी पे नहीं किया है, तो जे के लोन अकाउंट में 90 दिखाएगा, और जो ये एक्सेस रिजर्व है ये भी 0 हो गई अब, क्योंकि अब बैंक के पास जो वो सरप्लस पैसा था वो चला गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बैंक के पास, एक्स बैंक के पास जो अब बैलेंस शीट एक्स बैंक की है वो दिखाएगी 100 रुपये इधर और 100 रुपीज इधर. इज दैट ओके? व्हेन जे हैज मेड पेमेंट टू सी, कि अब जे अपने अकाउंट में से निकलवा कुछ नहीं सकता, अब उसे बैंक को 90 रुपीज पे करने हैं. इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू बैंक वाई. एज इन दिस ट्रांजैक्शन there is no one who holds the account with bank Y, hence the bank Y's situation will remain the same. Are you getting my point? क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसका बैंक Y में अकाउंट हो जो इस ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्व है, तो इस ट्रांजैक्शन का बैंक Y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बैंक Y जो है एज इट इज फंक्शन करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, और उसकी बैलेंस शीट एज इट इज हमें नजर आएगी. इज दैट ओके? तो टोटल करेंगे y के दोनों तरफ का तो 200 होगा. अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा. हेलो, इसमें क्या होगा. अब डी अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, तो जो ये सी है, ये जो सी है, अब क्योंकि जे ने पेमेंट कर दी है सी से, अब सारी पेमेंट होनी है, सारी ट्रांजैक्शन होगी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगी, तो सी के अकाउंट में 400 रुपये तो पहले थे. अब क्या होगा, सी के अकाउंट में 90 रुपीज जो यहां से थे वो इसके अकाउंट में आ जाएंगे. सॉरी, प्लीज होल्ड ऑन, वेट फॉर अ वाइल, लेट्स स्टार्ट. तो अब क्या होगा, सी के अकाउंट में क्योंकि 90 रुपीज आ गए हैं, तो अब सी का टोटल बैलेंस हो जाएगा 490. ठीक है, यानी कि ये प्लस होके दिखाएगा. मैंने तो दोनों अलग अलग लिखे हैं, पर उसके अकाउंट में क्या दिखेगा, एक ट्रांजैक्शन 90 की आती हुई दिखेगी उसकी पासबुक में, और फिर टोटल ऐड होके लिखा जाएगा. ऐसी होती है ना हमारी पासबुक में. तो सी के जो जेड बैंक है, जेड बैंक के रिजर्व्स में क्या चेंज आएगा, आर में, तो 40 रुपीज तो पहले से थे रिजर्व, और
₹9 और आ जाएंगे क्योंकि डिपॉजिट्स ₹90 से बढ़े हैं। तो अब एक्सेस रिजर्व्स कितने बच जाएंगे ये देखो। अब 490 में से 49 माइनस करो, 490 में से 49 जाएंगे तो एक तरीके से 451 रह जाएंगे, 441 रह जाएंगे, सॉरी 441। हेलो, 441 का बैलेंस रह जाएगा ना। तो बैलेंस हम ले लेते हैं 441, हमने लिख दिया 441। अब इस बैंक ने कोई लोन नहीं दिया तो इसकी यही है। तो अब इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, इसकी बैलेंस शीट दिखेगी 490 और यहाँ पर भी 490। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट होगी। तो अब ये देखो, अब इससे हमने सीखा क्या, अब ध्यान से देखो 2-4 बातें। सबसे पहली बात तो कि बैंक एक्स ने लैंड किया, बैंक एक्स के पास जो पैसा था उसमें से उसने लैंड किया, उतने पैसे लोन दिए, और जब वो लोन की पेमेंट उतने पैसों की कर देगा वो किसी और को, तो बैंक एक्स की अब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी नहीं रही, इसके पास एक्सेस रिजर्व 0 है। तो अब इसके पास एक्सेस रिजर्व 0 है, तो इसके पास कोई लोन लेने आएगा तो दिस बैंक विल नॉट बी एबल टू पे द लोन, और दिस बैंक विल नॉट बी एबल टू लैंड इट फर्दर। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। नंबर दो बात, बैंक वाई है, बैंक वाई की सिचुएशन एज इट इज है। बैंक वाई अभी भी 180 रुपीज के लोन आगे एक्सटेंड कर सकता है, तो बैंक वाई की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, इंटैक्ट है एज इट इज। ठीक है भाई। अब बैंक सी में क्योंकि डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं तो बैंक सी के एक्सेस रिजर्व्स बढ़ गए हैं, और बैंक सी के एक्सेस रिजर्व बढ़ गए हैं तो बैंक सी की अब क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ गई है। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। तो जब मल्टीपल बैंक सिस्टम होता है तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक बात तो ये सीखने की हुई कि भाई जब मल्टीपल बैंक इकोनॉमी है तो किसी एक बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, पर उसने से ही किसी दूसरे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम होगा, जो ये ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम जो है, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल बैंकिंग की। भाई इस बैंक की तो कम हुई है पर इस बैंक की बढ़ गई है लैंडिंग कैपेसिटी, इस बैंक की कम हुई थी, इस बैंक की बढ़ गई लैंडिंग कैपेसिटी। अब इस बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो पहले सिर्फ ये बैंक करता, अब ये बैंक करेगा उस काम को, पर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ी है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है। तो इस तरह के क्रेडिट क्रिएशन को बोलते हैं एक्टिव क्रेडिट क्रिएशन। क्या इतनी बात समझ में आई है? इस तरह के क्रेडिट क्रिएशन को क्या बोलते हैं? एक्टिव क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। अब एक हो सकता है दूसरे तरीके का जिसको हम बोलते हैं पैसिव क्रेडिट क्रिएशन। अब उसका क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। पैसिव क्रेडिट क्रिएशन एक तरीके से पैसिव डिपॉजिट क्रिएशन, ये आप कह सकते हो। पैसिव डिपॉजिट क्रिएशन। एक होता है एक्टिव डिपॉजिट क्रिएशन, इसको एक्टिव क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन बोलते हैं, और एक तरीके का होता है पैसिव। अब पैसिव में क्या होता है वो आज समझो। अब देखो, बैंक ए की लोन देने की कैपेसिटी तो खत्म हो गई है, पर बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ सकते हैं। कैसे? ए अपनी सेविंग्स करेगा आगे, हो सकता है अगले महीने कुछ पैसे जमा करा दे, हो सकता है जे के पास कहीं से इनकम आए वो डिपॉजिट कर दे यहाँ पर, तो एक तरीके से ये डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह के जो डिपॉजिट्स बढ़ते हैं बाय वे व्हेन द पीपल्स आर डिपॉजिटिंग देयर सेविंग्स इनटू द बैंक्स, that is known as passive deposit creation,
दैट इज नोन एज पैसिव डिपॉजिट क्रिएशन। अब जैसे वाई है, वाई ने किसी को लोन नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब सवाल है क्या ये डिपॉजिट बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़ सकते हैं, कि कोई भी इंडिविजुअल होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है के ने अपना अकाउंट खुलवाया, उसके पास इनकम आई, उस इनकम में से उसने अगर मान लीजिए 50 रुपये सेविंग की, तो उस बैंक की अब बैलेंस शीट ये बदल जाएगी। अब यहाँ पर ये 5 रुपये आ जाएंगे प्लस 45 रुपये यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये 250 रुपये यहाँ पे दिखा देगा ये। तो इस तरह का जो क्रिएशन होता है वो पैसिव क्रिएशन कहलाता है, उसको बोलते हैं पैसिव डिपॉजिट क्रिएशन या पैसिव क्रेडिट क्रिएशन। इज दैट ओके? उसको बोलते हैं पैसिव डिपॉजिट क्रिएशन या पैसिव क्रेडिट क्रिएशन। अरे भाई क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, यानी कि जब बैंक अपना लैंडिंग प्रोसेस के थ्रू डिपॉजिट्स को बढ़ाता है तो वो कहलाता है एक्टिव क्रेडिट क्रिएशन या एक्टिव डिपॉजिट क्रिएशन। जब बैंक कुछ नहीं कर रहा, जो क्लाइंट्स हैं वो अपने अकाउंट्स में अपनी मर्जी से आउट ऑफ देयर इनकम दे आर सेविंग समथिंग एंड दे आर पुटिंग इट इनटू द बैंक अकाउंट्स इन देयर बैंक अकाउंट्स, बाय वे ऑफ दैट प्रोसेस if the deposits of the bank increases, that is known as passive deposit creation, or you can say the passive credit creation. Is that okay with everyone? Hello, did you get it? ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और सिंगल बैंक इकोनॉमी में कैसे होता है, मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में कैसे होता है. दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास. If any one of you have any doubts or any questions in regard to this, I am free to answer them. Please do ask the question one by one. If you have any doubts or any questions, yes, please. What's your name? Saurav Motit. Yes, Saurav, please ask. भाई ये देखो ना, इस बैंक में 90 रुपीज थे, तो ये बैंक 90 रुपीज के लोन ये एक्सटेंड कर सकता था, 180 के ये एक्सटेंड कर सकता था और आगे ये एक्सटेंड कर सकता था जो भी इसके पास था पैसा. पर जैसे ही ये पैसा यहाँ से यहाँ गया, जब ये 90 यहाँ दिखा रखे थे तो यहाँ 81 के थे ना उसके पास एक्सेस रिजर्व. जब यहाँ 90 दिखा रहा था, ऊपर बैलेंस शीट में देखें, जब यहाँ 90 है तो एक्सेस रिजर्व में 81 रुपीज है ना. तो टोटल बैंकिंग सिस्टम में देखें तो एक्सेस रिजर्व कितने हैं? 81 ये और 180 ये और 360 ये. जोड़ो जरा इनको, 360, 180 और 81 को जोड़ो, टोटल कितना हुआ? और टेल मी द आंसर. यस, तो 81 प्लस 180 प्लस 180 प्लस व्हाट वाज द अमाउंट? 360. तो कितना आया? 621. ठीक है, यानी कि टोटल बैंकिंग सिस्टम में देखें तो इतने एक्सेस रिजर्व है, तो इसी एक्सेस रिजर्व के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे, क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन होगा ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का. इज दैट ओके? ठीक है, अब यहां पर देखो इस सिचुएशन में, अब वो 81 रुपीज यहां से निकल के एक तरीके से यहां पहुंच गए. ठीक है, यानी कि 90 रुपीज गए तो 81 के एक्सेस रिजर्व यहां चले गए. तो अब देखो जरा यहां पर 180 ये थे, ये अगर के को हटा दें, क्योंकि के यहां पर नहीं था ना, के को अगर हम हटा दें, के को अगर हम हटा दें यहां से, अगर हम के को एक तरीके से अभी इग्नोर कर दें कि के आया है यहां पर, ठीक है, तो यहां कितने हैं? 180. ठीक है, प्लस यहां कितने हैं? 441. टोटल करो कितना आया, टोटल करके बताओ मुझे कितना आया दोनों का. 621. तो ये देखो, इस बैंक में से निकल के इस बैंक में गए पैसे, इतना ही तो काम हुआ है भाई. मेरी जेब में से पैसे आपके मेरी पॉकेट में से पैसे आपकी पॉकेट में चले गए, तो ओवरऑल इकोनॉमी में तो पैसे उतने ही है ना, मनी उतनी है ना. ओवरऑल इकोनॉमी तो फंड्स इतने ही ना, वो अलग बात है. मेरे पास अब कम हो गए, अब सौरभ वोटित के पास बढ़ गए. तो अगर आप देखोगे तो टोटल एक्सेस रिजर्व अभी भी 621 है. वो अलग बात है कि इंटरनली जो कॉम्पोजिशन है वो बदल गया है, कि पहले एक्स के पास 81 थे, अब वो यहाँ चले गए. तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी सेम रहती है. ठीक है, बढ़ती ही है हर बार, चाहे पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में जाए. वो इंडिविजुअल बैंक्स होते हैं जिनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो वेरी कर सकती है. इज दैट ओके? कोई और सवाल पूछना है किसी ने?
I hope I answered your question. Hello? Is anyone else wants to ask anything? Hello? अरविंद, किसी ने कोई सवाल पूछना है? तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.